Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 5, I hope you all are fine. जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है। तो अल्लाह ताला आप सब पर भी अपना ख़ास करम फरमाए और सबको दुआ में याद रखिएगा। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द न्यू वर्किंग ऑफ द टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक सी फीवर को। As you know, the Sea Fever is a poem written by John Masefield. ठीक है। In previous lecture we have done its reading and explanation and its words meaning as well. Now today we are going to start its summary and question answers. So don't go anywhere. Please take out the copies. So my dear students, first of all you have to write down the heading of the Sea Fever on the header, and next you have to write down the heading of introduction. Okay. We are going to start the introduction of the poem Sea Fever. John Masefield, the poet literature of United Kingdom. He was a British novelist, story writer and poet and was born in England. Some of his famous contributions are The Midnight Folk, The Box of Delight, Sea Fever and many more. ठीक है? So this is the introduction. Now we are going to start the summary. So write down the heading of the summary. In summary, what is it? In the poem, the poet expressed his strong desire to get back to the sea. ठीक है, as the call from the sea cannot be ignored or denied. यानी कि आपको पता है इस पोम में पोइट जो है अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से वो समंदर पे वापस जाना चाहता है और किस तरीके से समंदर उसे बुला रहा है जिसे वो झुटला नहीं सकता. He wishes that there would be strong wind that would blow away the ship white clouds in the sky and take the sail forward throughout the day. यानी कि वो उम्मीद करता है कि ऐसे बादल हों, ऐसी हवा हो जो उसकी शिप को उड़ा ले जाए उसी दिन में. In the last paragraph explain that the poet would like to be a wandering gypsy. However, he would miss the seagulls and the white whales. Most of all his time spent with his fellow men at the deck, listening to tales and the good and silent sleep which drift into a sweet dreams. Okay, so what does that mean? इस समरी में वो क्या कहता है? वो इसमें ये कह रहा है कि वो महसूस करना चाहता है पानी के उस बहाव को, और अपने आखिरी पैराग्राफ में उसने एक्सप्रेस भी किया है कि वो जो है एक खाना बदोशों की ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है. वो अपने सफ़र में साथ चाहता है एक ऐसा शख्स जो कि उसको अच्छी कहानियाँ सुनाए, अच्छा उसका टाइम स्पेंड कर सके और उसका जो है मनोरंजन कर सके. एंड उसके बाद वो क्या चाहता है? वो चाहता है एक ऐसी नींद जिसमें वो सुकून से सो सके पूरे दिन की थकन के बाद और उसमें सुनहरे ख्वाब देख सके. ठीक है, दैट इज़ द समरी ऑल अबाउट. नाउ एवरीवन प्लीज़ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द सेंट्रल आइडिया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स central idea on the new page. Now write down the heading of the central idea. Here is it. The theme is obvious: wanderlust. The poem's speaker hears the call of the sea, an irresistible invitation to adventure, exploration and independent living. Most people experience wanderlust from time to time. What does it mean? इसका मतलब ये है कि इस कहानी में जो पोइट्री जो पोम में जो आपको एक थीम दी गई है, एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, वो एक शख्स के हवाले से है. ऑब्वियसली वो जो है ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है जिसमें वो सिर्फ सफ़र को एंजॉय करना चाह रहा है, अकेले रहना चाह रहा है. उसमें वो किसी को जो है अपना एक ऐसा साथी चाहता है जो उसका सफ़र जो है और ज़्यादा बेहतरीन बना सके. वो एक जगह से दूसरी जगह को एंजॉय करना और एक्सपीरियंस करना चाह रहा है कि अकेले रहकर ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है. नई चीज़ों को महसूस करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, ज़िंदगी की उतार चढ़ाइयों को देखना चाहता है. Now we are going to start the question answers of the poem. So open the new page, write down the heading of the question answers. First question we have: Where does the speaker want to go? Speaker जो है, जो poet है, वो कहाँ जाना चाहता है? The speaker wanted to go back to the sea to enjoy its calmness and smoothness. यानी कि जो poet है डेफिनेटली वो वापस जाना चाहता है समंदर में, उसका जो सुकून है उसको महसूस करना चाहता है. ठीक है. What is the question number 2? Question number 2 is why must he go back to sea? ठीक है, वो क्यों यकीनन वापस जाएगा? He must go back to sea to enjoy the strong wind that would blow away the thick white clouds
in the sky. He wanted to spend his time with his fellow men, listening stories and sleeping silently, which drifts into a sweet dreams. आंसर का मतलब क्या है? आंसर का मतलब ये है कि यकीनन वो लाजमी वापस जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो है बहुत मिस कर रहा है समंदर को, समंदर की जो है हवाओं को, जिस तरीके से वो हवा चलती है, सफ़ेद बादलों में से गुज़रती है, या बादल उसको जो है वो एक ख़ूबसूरती का मंज़र पेश कर रहे होते हैं, और साथ में वो अपने एक ऐसे साथी को चाहता है जो कि उसको कहानियाँ सुनाए, वो उसकी कहानियों को सुने और दिन भर की थकन के बाद वो आराम से सो सके और उसमें अच्छे सुनहरे ख्वाब देख सके। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द स्पीकर विश टू हैव? किस तरह की ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है वो स्पीकर कर रहा है। स्पीकर विश टू स्पेंड हिज लाइफ एट सी, where he spent his time with fellow beings and listening stories which leads to beautiful dream। ठीक है, यानी कि स्पीकर की ख्वाहिश ये है कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे समंदर पे जाकर या समंदर में जहाँ उसे कोई कहानियाँ सुना और उन कहानियों की वजह से उसका टाइम अच्छा गुजर जाए, साथ ही ऐसा हो जो उसको इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी बातें बताए, और जिन बातों को वो जहन में रखते हुए जब सोए तो वो उन्हीं से रिलेटेड अच्छे से ख्वाब देख सके। ठीक है, लाइफ का एडवेंचर इन्जॉय कर सके, अकेले अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुशियों के साथ या एडवेंचर के साथ गुजार सके समंदर पे। ठीक है, सो दैट इज़ द टॉपिक ऑल अबाउट। ये आपका सी फीवर की जो पोम है यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आपने तमाम कॉपी वर्क अच्छे से परफॉर्म करना है, वेरी नीटली, विदाउट एनी मिस्टेक्स। Hopefully you will perform the work neatly in the copy. Must write down the heading with the markers as I definitely guided you all the time. First of all, use the blue marker for the heading and underline it with the black one. आपने कॉपी में इसको क्वेश्चन आंसर्स को नीटली परफॉर्म करना है और टाइटल पे लाजमी बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।